There are still many aspects of this nation, this land, these people. We are seeing how to look at bringing out the dimensions which are hidden from the eyes of a tourist brochure. So this is an exploration of the American heart. Let's see what we discover. Let's see what exciting things we encounter and what amazing sights we definitely bound to have. Probably one of the oldest structures in North America still surviving, nearly 2,000 years old, the ritualistic fortress that was built by the Native American tribe. McMinnville birthing tree, a whole lot of Native American women have delivered their babies here in the shelter of this tree. Wherever we go, South Indian lemon rice won't leave us. The Native Americans who built mounds for various purposes, built cities along the Mississippi banks. Huckleberry Finn, when I first read this by Mark Twain, it so excited me, which led me to float down Kaveri River. जाएंगे कहाँ कौन है तेरा The chief Pontiac of the Ottawa tribe was killed by the Illinois tribes. In revenge, they chased this band of braves or young men, and they came and holed up on this rock. And the two tribes, Potomac and the Illinois tribes, surrounded them. I don't know for how long, but that entire band died here on top of this rock, starving. So it has this name as Starved Rock. The next one is going to be one long ride. On the way, there's a very unique mound system called effigy mounds. They are in the form of birds and animals. Evening, after the effigy mounds, we rested there for a couple of hours and started off just before midnight, back to old ways. Full night riding. This is American buffalo. In many ways, it's the buffalo migrations which determined the Lakota life. Killing of the buffalo was a part of the strategy to starve the Lakota nation, and it worked, unfortunately. We will be going west towards Black Hills in the next couple of days, and we will be exploring this possibility of who they were, their spiritual process. They had very elaborate systems of rituals. We will explore these dimensions. Nation, this gift that I'm going to present to my friends is not coming from me. It's coming from this mountain, from the Creator. These are the most sacred to us. And I could see His Spirit
very strong. with absolute passion for everything around them and a certain sense of dispassion about their own life, about their own death, I think there is a lot that modern societies need to pick up from ancient societies because there was a certain cohesiveness with life around them. Without that cohesiveness, everything seems to be problem. We have a long way to come, Native Americans, to heal ourselves. People are talking about ecology as a science. That way it'll never work. Ecology should become our heart, as it was for the indigenous people here. Their heart was land. That is one dimension that we really want to present to the world. That's the reason why I'm meeting all Native American leaders, medicine men and others, so that they express themselves clearly. And their message is not of the past, it is most relevant for the future. Matotipila, in my experience, in the entire North American continent, at least in United States and Canada, I would say, is probably the one most powerful space that you can see in this part of the world. Tab, you are a singer, you must spend minimum 3 days at this Matotipila, especially on the full moon night. I'm telling you, you will realize something tremendously powerful. Anybody who realizes or opens up the throat center, their ability to connect with life, I'm saying when I say connect with life, you can touch beyond your physical reach, literally touch. Here there's an energetic body expressing this dimension of the throat center in the human system in an extremely powerful way, which is… I've never seen a place like that in my life. Expressing this dimension
Well, there are many places, natural features which have a certain amount of energy. But the important thing is the way ऐसी you बहुत respond. सारी जगह हैं जहाँ पे प्राकृतिक रूप से कई चीज़ें हो रही हैं, पर जिस तरह से वह इंसानों की तरफ रिस्पॉन्ड कर रही हैं वो बिल्कुल ही अद्भुत है। That they existed here not as exploiters of land, यह but as land वे itself. लोग यहाँ ऐसे रहते थे जो खुद ही जिस तरह से पृथ्वी हो उस तरह से, केवल उसका इस्तेमाल करने के लिए नहीं, पर वह पृथ्वी का एक हिस्सा बन के रहते थे। इनसे मिलना, इनसे बात करना और इस पूरी दुनिया को नेटिव अमेरिकन कल्चर के बारे में बताना, यह इस रैली का मिशन है। Shivanage bandhana Yogeshwara Shivanage bandhana Bhuteshwara Shivanage bandhana Kaleshwara Shivanage bandhana Jagadishwara Bandhana Madheva Bahurupiya Kandhano Kandhano Ijiviya Kandhano Kandhano Ijiviya Yanjiva Undhano Shivarupiya Tandhano Tandhano Gnanamrita Tandhano Tandhano Gnanamrita Tandhano Tandhano Gnanamrita
नमस्कारम। छत्तीस दिन हो गए हैं सड़क पर। हालांकि पिछले 40-45 सालों में मैं हमेशा ही यात्रा में रहा हूँ, पर फिर भी यह यात्रा काफ़ी अलग रही है हर तरह से। क्योंकि विभिन्न चीज़ों के कारण ऐसा है। एक ज़रूरी चीज़ यह है कि मुझे आप सभी का ध्यान नहीं रखना था, क्योंकि जब भी हम ऐसी कोई यात्रा करते हैं, इस तरह की यात्रा या रैलीज़, हिमालयन यात्रा या तिब्बत, ऐसी जो भी चीज़ें हम करते हैं, हमेशा स्केड्यूल रहता है, लोगों का ध्यान रखना। यह यात्रा 21 दिन की थी, पर यह 36 दिन की हो गई। पर अगर आप वहाँ होते तो आप बिल्कुल ही डर जाते। नहीं, आप अपना सिर ना हिलाएं। क्योंकि यह होने की एक सच्चाई है। आजकल लोग 7 दिन के इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन करके यहाँ दूर यात्रा करके इनिशिएशन के लिए आते हैं, और यह सेशन 6 बजे ख़त्म होता है और उनकी 6:20 पर एक फ़्लाइट है। 6:20 प्रेजेंस टाइम है, तो वो उसी टाइम यात्रा करना चाहते हैं। और दूसरा इनिशिएशन है, आप नहीं जा सकते। लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे जाना है, मुझे जाना है। वह इधर उधर दौड़ते रहते हैं। कई बार हम कार्यक्रम के टाइम को एडजस्ट करते हैं, पर दुर्भाग्य से लोग इस तरह ही बने हैं, क्योंकि यह वह चीज़ है जो बदलने की है। ऐसा लगता है इस महामारी ने लोगों में कुछ बुद्धि लाई है। Not been on a two-wheeler or a motorcycle for this long. मैं इतने सालों में एक मोटरसाइकिल पर इतने समय तक नहीं रहा हूँ। लगभग 30 साल बीत गए। थोड़े दिन बीच में कभी 1, 2, 3 दिन के लिए हमने ऐसी यात्राएं करी हैं, पर इस तरह से नहीं। लगभग 100 माइल्स, जो 10,000 माइल्स के बराबर, क्योंकि कई सारी नेटिव अमेरिकन जगहें जो हैं, अगर हम उन यात्रा को भी करते तो लगभग 7,000 माइल्स होते। तो यह इस डिस्टेंस के बारे में नहीं है,
यह एक पूरी लोगों की टीम 17-16 लोगों की यह टीम है जो एक व्यक्ति की तरह काम कर रहे थे पिछले 36 दिनों में, बिना किसी गलती के। हमेशा जो भी हम करना चाहते थे उसे पूर्ण रूप से करना। कई व्यवस्था की चीज़ें जो यहाँ से संभाली जा रही थी, टेक्नोलॉजी की चीज़ें, लगभग 3 से 4 इंटरव्यू हर रोज़ होते थे और शूट होते थे। हमारी कैमरा टीम्स जो हमारे साथ थी, जो इस तरह के करतब कर रही थी अच्छे शॉट्स लेने के लिए। सभी लोग बिना उन्हें कुछ भी बताए हुए कि क्या करने की ज़रूरत है, उन्होंने एक बहुत ही शानदार काम किया है। वो लोग जो ईशा से परेशान हो जाते हैं क्योंकि यह एक कॉर्पोरेट की तरह काम नहीं करती, सब कुछ एक कन्फ्यूजन की तरह लगता है, पर कभी भी आज तक एक भी इवेंट असफल नहीं हुआ है। हर बार हर इवेंट इसी तरह से होता है। इसीलिए मैं ईशा को इस ऑर्गेनाइजेशन को एक रोलर कोस्टर की तरह डिस्क्राइब करता हूँ। लोग कहते हैं कि यह एक खतरनाक चीज़ है, पर क्या आपने कभी सुना है कि एक रोलर कोस्टर अपनी पटरी से उतरा हो और लोगों की मृत्यु हुई हो? ऐसा चीज़ कभी भी नहीं हुई है। केवल आपको ऐसी फीलिंग होती है, पर ऐसा कभी नहीं हुआ है। देखिए, हमारा काम एक अनुभव पैदा करना है, या वह खुशी से हो या परेशानी से हो, किसी भी तरह हो, आप आध्यात्मिकता की ओर मुड़ जाएंगे। क्योंकि योगरतोवा बोगरतोवा यह हम कब से गा रहे हैं। किस भी तरह से, जैसे भी हो, आप अंदर की तरफ मुड़े, यह ज़रूरी है। जब आप लोगों को ऐसी कठिन परिस्थितियों में डालते हैं, जब उन्हें कई सारी चीज़ें जिनके बारे में हमें पता नहीं है, तब आप देखते हैं वे लोग पूरी क्षमता के साथ काम करते हैं। अगर आप उन्हें रोज़मर्रा के काम करने कहें तो वह उन्हें पूरी तरह से बिगाड़ देंगे, पर अगर आप उन्हें ऐसे कठिन परिस्थिति में डालते हैं, वह बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो 36 दिन रोड पर, मोटरसाइकिल पे, बहुत अलग अलग तरह की टेरेन्स, अलग अलग तरह की परिस्थितियाँ, बिना किसी गलती के, जब तक हम यहाँ आए हैं। अब यहाँ आकर वे कुछ कन्फ्यूजन शुरू करेंगे। यह बहुत ही शानदार सफ़र रहा है। सबसे पहले मैं उन सभी नेटिव अमेरिकन लोगों को अपना आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया, और वे लोग जिन्होंने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया है, जिन्होंने हमारी यात्रा को बहुत सफल बनाया है। उन लोगों को आभार जिन्होंने यह मशीनें बनाई हैं जो बिना किसी समस्या के 10,000 माइल्स आप आराम से कवर कर सकते हैं। केवल टायर चेंज करने की आवश्यकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जब मैं 40 साल पहले चलाता था, मोटरसाइकिल चलाता था, तब हर 1000 किलोमीटर पर मुझे अपने हाथ गंदे करने पड़ते थे।
चेन को देखना, हर चीज़ को देखना, मशीन में अलग तरह के एडजस्टमेंट्स करना। बिना अपने हाथ गंदे करे आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, यह इसका हिस्सा है। पर आज की आधुनिक मशीनें ऐसी हैं कि बिना किसी गड़बड़ के बस यूं ही चलती जाती हैं। उन सभी को मेरा आभार। और ऐसे बहुत सारे लोग जिन्हें हमने इस सफ़र में मिले, जिन्होंने इस पूरे अनुभव को निखारा है, वे जो हमारे साथ सोशल मीडिया में आए, कई लाइव इंटरव्यूज़ के लिए आए, उन सभी के बिना यह इस तरह से नहीं हो पाता। वे लोग और हमारी टीम्स जो यहाँ यूएस में और भारत में काम कर रही हैं, उनके बिना यह संभव नहीं था। यह हमेशा से ही ऐसा रहा है। 18 से 20 घंटे दिन में रोज़ हम काम कर रहे हैं। पर सारी चीज़ें हफ्ते के 7 दिन, वे लोग जो हम सफ़र पे थे और जो लोग यहाँ थे, वह नॉन स्टॉप काम कर रहे थे। चाहे काम अलग अलग हो, पर मैं यह शब्द काम यानी वर्क यूज़ कर रहा हूँ। मैंने सोचा था कि मैं इस शब्द को कभी अपने जीवन में नहीं इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि मैं कभी काम नहीं करता। पर कई लोगों ने इस तरह के कमेंट्स भेजे कि सद्गुरु हमेशा मज़े में हैं। तो मैंने यह शब्द काम का इस्तेमाल करना शुरू किया है। अन्यथा इतने सालों में पूरी जागरूकता के साथ मैंने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि काम उन लोगों के लिए है जो एक तरह से अपना जीवन बनाना चाहते। केवल एक लिविंग बनाना, मैंने कभी इसे अपने जीवन में नहीं रखा था। एक बहुत छोटी उम्र से मैंने यह सोचा था कि मैं खुद को किसी भी चीज़ के लिए क्वालिफाई नहीं करूँगा। मेरे पिताजी जो हमेशा पहले 3 लोगों में होते थे अपने कॉलेज में या अपनी कक्षा में, वे हमेशा सोचते थे कि बिना किसी डिग्री, बिना किसी क्वालिफ़िकेशन के कोई कैसे जीवन जी सकता है। वो हमेशा ही मेरे भविष्य के बारे में चिंतित रहते थे। इस लड़के के साथ क्या होगा, इसके दिल में कोई भय ही नहीं है और इसके पास किसी भी तरह की डिग्री भी नहीं है, ये कहाँ जाएगा, क्या करेगा। मैंने उनको कहा कि आप मेरे जीवन के बारे में, मेरे सर्वाइवल के बारे में चिंता मत कीजिए। मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूँगा। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो मैं जंगल में जाके जी सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं वहाँ बिल्कुल आराम से रह सकता हूँ। यह मैं पहले भी करा था। तो आप मेरी चिंता नहीं करें। मैं यहाँ आपके पास नहीं आऊँगा, नहीं सड़क पर जाके किसी से भीख मांगूँगा, क्योंकि 8 साल की उम्र में मैंने 1 रुपया भी पॉकेट मनी नहीं लिया था। मैंने खुद ही इसे कमाया था। जब मैं 10-12 साल का था तो मेरे पास लगभग कुछ 1000 रुपये थे। मैं बहुत ही अमीर था, तो मुझे यह नहीं समझ में आता था इसे मैं कहाँ रखूँ। तो मैं हर 1000 रुपये को एक रबर बैंड में बांधकर अपने किताबों में छुपा कर रखता था, क्योंकि मेरी किताबों को कभी भी कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। उसमें इतनी बुद्धि है, इतनी नॉलेज है, तो मैं उन्हें बहुत टाइटली रबर बैंड से बांधकर आराम से किताब में रखता था। तो जब भी मुझे किसी सफ़र पर जाना हो, एक रोल निकालना और बस बाहर जाना। क्योंकि मैंने साइकिल के कई एक्सपेडिशंस कई लोगों के लिए स्पॉन्सर करे थे, क्योंकि ऐसे कई मूर्ख थे कि जब मैंने कई 3-4 लोगों को इकट्ठा करके उन्हें एक साथ ले जाना चाहता था, बिल्कुल ट्रिप से पहले वे कहते थे कि मेरे पास टायर नहीं है, तो मैं उनके लिए टायर लगाता था और उस सफ़र के बाद टायर वापस ले लेता था।
survival has never been on my mind. तो केवल सर्वाइवल, जिंदा रहना मेरे मन में कभी भी नहीं था। तो मैं यह नहीं समझ पा रहा कि क्यों इंसानों को इसकी चिंता है। आप देख रहे हैं यह सारे जीव जंतु एक छोटे से दिमाग के साथ भी जीवन जी रहे हैं, पर इतने बड़े ब्रेन, इतने बड़े दिमाग के साथ भी इंसान इसे नहीं कर पा रहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह किसी की तरह होना चाहते हैं। आप उनकी जैसे खाना चाहते हैं, आप उनके तरह के घर में रहना चाहते हैं, वैसे ही कपड़े पहनना चाहते हैं। मैं इसे बंदरपना कहता हूँ। You want to be like that one. मैं उसके जैसे होना चाहता हूँ, है कि नहीं? तो यह क्या यह बंदरपना नहीं है? Guru, as soon as you come back, you're getting mean one. सद्गुरु, आप जैसे ही वापस आए हैं आप फिर से दुष्ट हो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इस सफ़र पर भी मैं इस तरह से ही था। Because this, well, certain people are going to क्योंकि कई लोग एक but अगले एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं कि इंसान के दिमाग में एक स्ट्रक्चर है, एक तरीका है। तो बहुत ज़रूरी है वे इसे तोड़ें, वरना वह जीवन को नहीं जान पाएंगे। it's all set. That's it, you know. उनके मन में यह बिल्कुल स्थिर है कि ऐसे ही होना है। हमें स्कूल जाना है, उसके बाद हमें कॉलेज जाना है। हो सकता है आप कॉलेज ना जाएं, पर आपको घर से तो बाहर जाना ही है। उसके बाद आपकी नौकरी है, आपको उसी समय वहाँ जाना है। इस तरह से आप एक तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं। इनमें कोई जीवन नहीं है, केवल इसमें मनोविज्ञान है, पर कोई जीवन नहीं है। In a way, once a तो take a 10-day vacation, कम से कम साल में एक बार आप 10 दिन की छुट्टी लीजिए और आप फिर उसे एंजॉय करते हैं। पर यह केवल पहले 2 दिन के लिए ही होता है, उसके बाद आपको पता है क्या होता है। तो मैंने यह सोचा कि मेरा पूरा जीवन छुट्टी होगा, पर यह एक बहुमूल्य छुट्टी होगा। मैं केवल इन 36 दिनों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमेशा ही एक छुट्टी पर रहा हूँ। किसी ने भी मुझे एक काम करने के तरीके में, वर्किंग मोड में नहीं देखा है। देखिए, यह एक बहुत ही गंभीर बिजनेस है, आध्यात्मिकता। आपको मेरी तस्वीर खींचनी चाहिए ऐसे। this is serious business. यह काफ़ी गंभीर बिजनेस है। यह ऐसा भी नहीं है ऑफिस जाने की तरह। यह आध्यात्मिकता है जो बहुत ही गंभीर है। Before it's been conducted हो सकता है कभी भी such casualness and ease. इस आसानी से इसे नहीं Not trying to brag. कंडक्ट किया गया है। मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, पर मैंने देखा है और पाया है कि यह बहुत ही गंभीर है और मैं वैसा नहीं होना चाहता। Being intense, being profound, तीव्र होना, being focused on something is a different फोकस्ड होना, यह एक अलग चीज़ है। serious. पर गंभीर होना, सीरियस होना और केवल काम करना, यह एक अलग समस्या है। सद्गुरु, आपके लिए यह सब कहना बहुत आसान है, वहाँ बैठकर बहुत आसान है। उस व्यक्ति का क्या जो किराने की दुकान की इतनी बड़ी लाइन में खड़ा है, तो वह खुशी से भी तो खड़ा हो सकता है कि नहीं? Standing behind the counter, all of them can stand joyfully. Is anybody चाहे stopping them? वह लाइन में खड़े हों या काउंटर के उस तरफ खड़े हों, वो खुशी से खड़े हो सकते हैं, है कि नहीं? ऐसे कई लोग हैं जो छोटी छोटी चीज़ें बहुत खुशी के साथ करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। यह आमतौर पर महिलाओं के साथ सत्य रहा है, सच रहा है, क्योंकि वे ज़्यादातर घर से काम कर रहे थे। पर अब यह पुरुषों के साथ भी है, क्योंकि वे भी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं वायरस के कारण। मैंने देखा है मेरे माताजी, कुछ और अन्य आंटियाँ, वो केवल खुशी से खाना बना रही हैं, गाना गा रही हैं, बस केवल कोई अच्छे से खा ले, इसमें भी वह खुश रहती थी। कभी कभार वे भी परेशान होती थी, पर ख़ास तौर से महिलाएं हमेशा से
काफ़ी खुशी से अपना काम कर रही थी। पर अब चीज़ें बदल गई हैं। कई महिलाएं तालियां बजा रही हैं। यह इसके बारे में नहीं है जो हम काम कर रहे हैं, पर हम जिस तरह से हैं वह ज़रूरी है। हर व्यक्ति को कुछ करने की ज़रूरत है। आध्यात्मिकता जो कि एक बहुत ही गंभीर, क्योंकि अगर आप आध्यात्मिक होते हैं तो आपका चेहरा लंबा हो जाना चाहिए। अब आपके साथ समस्या है कि हमें पता भी नहीं आप कितने परेशान हैं क्योंकि आपने मास्क पहने हुए हैं। हम यह पता भी नहीं कर सकते, और यह ईशा मास तो इतने लंबे हैं कि हम देख भी नहीं सकते। वो सारे चेहरे जो मुस्कुरा नहीं रहे हैं वो अब सेव्ड हैं। एक तरह से दुनिया भी मुक्त है। वे अपने मास्क के ऊपर एक स्माइली पहन सकते हैं और काम हो गया। अरे सदगुरु, मैं कल ही तो मुस्कुराया था, तो मैं डिट्टो कह सकता हूँ। कल भी तो मैं मुस्कुराया था, तो आज मुस्कुराने की क्या ज़रूरत है? ऐसा नहीं है कि आपको मुस्कुराना ही है, यह एक बीमारी है। किसी ने भी इस पेड़ को नहीं बोला कि फूल खिलना चाहिए। अगर वह अच्छी तरह से खाद पानी उसे मिला हुआ है तो वह खुद ही खिलेगा। उसे कोई सीख नहीं चाहिए कि यह फूल खिलने चाहिए और इनकी खुशबू फैलनी चाहिए। अगर उनकी ठीक तरह से देखभाल हुई है तो वो वैसे ही खिलेंगे। पर इंसान, क्योंकि उनका एक तरह का दिमाग है जिससे उन्होंने इस्तेमाल करना ही नहीं सीखा है, वह ऐसे हो गए हैं। पर यह मास्क कितनी अच्छी चीज़ है उनके लिए। कम से कम अब मास्क के पीछे आप खुश रहना प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब कुछ समय बाद हो सकता है जब आपको यह मास्क नहीं पहनना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई हर तरह के डिज़ाइनर मास्क बना रहे हैं। ऐसा उन्हें लगता है कि वो उसमें हमेशा ही रहेंगे, क्योंकि कई लोगों के लिए यह मेकअप सेव कर रहा होगा। अब सोचिए कि मूवीज़ में भी, पिक्चरों में भी अगर सब लोगों ने मास्क पहना हुआ है तो एक तरह की इक्वालिटी है, समानता है, क्योंकि कोई भी सुंदर लोग नहीं हैं, कोई भी बदसूरत लोग नहीं हैं, सब एक तरह से। तो आप एक डिज़ाइनर मास्क भी पहन सकते हैं। तो मैं क्यों आज इस तरह से आपसे बात कर रहा हूँ और आपको यह एक्सपेक्टेशन है कि मैं आपसे इस सफ़र के बारे में बात करूँ, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा एडवेंचर, सबसे बड़ा रोमांच यह नहीं है कि आप एक पहाड़ चलें, पर यह है कि हर रोज़ आप अपने अंदर एक सीमा को तोड़ें। यह सबसे बड़ा एडवेंचर है। अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं या आप उड़ रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, केवल अपनी सीमाओं से परे जाना, यही सबसे बड़ा एडवेंचर है। उस पहाड़ में नहीं है, मोटरसाइकिल में नहीं है, एरोप्लेन में नहीं है। वह इसमें है कि आपने एक सीमा पार करी और कोई आपको इसके लिए मना नहीं कर सकता। अगर आप 9 से 5 तक एक ऑफिस में काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी आपको इससे रोक नहीं सकता। रोज़ आप कोई एक सीमा पार कर सकते हैं। अगर रोज़ आप एक बंधन तोड़ते हैं, अपनी एक लिमिटेशन तोड़ते हैं, तो कितनी बड़ी हीप्स हैं आपकी लिमिटेशंस की। एक दिन आके आप उससे मुक्त हो जाएंगे, ऐसा ज़रूर होगा, है कि नहीं? मुक्ति लोग समझते हैं यह आसमान में उड़ती एक चिड़िया है। जी नहीं, मैं इनसे इतना रोमांचित था जब मैं फार्म में रहता था। ईगल्स और हॉक्स जो उड़ रही रहती थी, मैं केवल उन्हें देखता रहता था।
क्योंकि 17 साल की उम्र में मैंने उड़ने की कोशिश करी और मेरी दोनों एड़ियाँ टूट गई थी। तो मैं काफ़ी समय तक इन्हें देखता रहता था। तब मैंने सोचा कि ये ऊपर हैं और पूरे समय नीचे देख रही हैं, चूहे के लिए, गिलहरी के लिए, जो कुछ भी इस पृथ्वी पर घूमती हैं। ये भी केवल ऑफिस ही गई हैं, है कि नहीं? बस ये है कि इनका ऑफिस ऊपर आसमान में है, वे बस नीचे देख रही हैं इस तरह से। मैं बस केवल इन छोटी चिड़ियाओं को देखा था, जैसे कि स्पैरोज़, जो हमेशा से ही खुशी से इधर उधर फुदकती रहती थी। बट ये सारी बड़ी चिड़ियाँ जो थी, ईगल्स या हॉक्स, ये हमेशा से ही नीचे देखती रहती थी खाने की खोज में। यह पायलट्स के साथ भी ट्रू है। क्या आप रिचर्ड बाग को जानते हैं? क्या आपने इनके बारे में सुना है? ओह, आप में से कई लोग जो युवा हैं इस तब पैदा हुए हैं जब इस दुनिया में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ें हो चुकी थी। रिचर्ड बाग एक बहुत ही फेमस इंसान थे जिन्होंने कई किताबें लिखी, और उनकी किताबें कुछ बहुत ही बेहतरीन किताबें थीं, जैसे कि जॉनथन लिविंगस्टोन सीगल। तो मैं 14-15 साल का था जब मैंने इनकी किताबें पढ़ना शुरू करी, और एक किताबों में उन्होंने कहा है कि अपना सारा समय उन्होंने जीवन में उड़ते हुए बिताया है, और उड़ने का सबसे बड़ी खुशी यह है कि जब आप हवा में एक दूसरे पायलट को अपनी प्लेन के पंख उड़ाते हुए हिलाते हुए देखें, यह सबसे बड़ी खुशी की बात है। हवा में एक व्यक्ति से संबंध करना केवल मुस्कुराने जैसा है, जिसे पायलट की स्माइल कहते हैं। वह सबसे बड़ी खुशी है उनके लिए। यह 5वीं किताब थी जो मैं पढ़ रहा था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि ज्योति, आपने मास्क पहना है, पर नहीं, ये आपकी आंखों में दिख रहा है। बस इस तरह से पंख हिलाना, यह उड़ान भरने का सबसे खुशनुमा अनुभव है। वो आप यहाँ भी कर सकते हैं। तो रोमांच, एडवेंचर किसी काम में नहीं है। आप जिस तरह से जीवन को देखते हैं, हर कदम आप थोड़ा और बेहतर चल सकते हैं। क्या आपने कोशिश करी है? केवल एक कदम जो आप लेते हैं, क्योंकि यह एक साधारण सी चीज़ नहीं है। एक ऐसे ब्रह्मांड में चलना, एक ऐसे प्लैनेट में चलना जो गोल है और वह भी चक्र कर रहा है। आप उन लोगों से पूछिए जो शराब पीते हैं, या वे लोग जिन्हें वर्टिगो है, वे इस गोलाकार प्लैनेट में जो कि खुद भी घूम रहा है, उस पे चलना आसान नहीं है। तो केवल इसे ही समझ पाना एक बहुत ही रोमांचक चीज़ है, क्योंकि अगर आप 100 जीवन भी बिता दें तो भी आप इसे नहीं जान पाएंगे, क्योंकि यह सैकड़ों सालों में इस तरह से बना है। यह सैकड़ों सालों में ऐसा हुआ है। केवल एक जीवन में आप कैसे इसे समझ सकते हैं? आप इसे पूरी तरह से भी कोशिश करते रहें एक्सप्लोर करने की, पर फिर भी ऐसी कई चीज़ें रहेंगी आपके अंदर जिसे आप फिर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अच्छा होगा कि आप में जो लोग जो हमारे साथ सफ़र पर थे, वे आकर कुछ कहें, क्योंकि मैंने इस सफ़र के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। नमस्कार सदगुरु। आप कृपया यहाँ सामने आ जाएं।
Namaskaram Sadhguru. नमस्कारम सद्गुरु। Thank you for the opportunity to ride with you Sadhguru. मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपने साथ आने की अनुमति दी। यह पूरा सफ़र लगभग 10,000 माइल्स का था। हम एक पल के लिए भी कभी थके नहीं और यह बहुत ही शानदार सफ़र था। यह ऐसा एक बार हुआ जो मेरे सह राइडर जो थे वह अपनी मोटरसाइकिल नहीं चला पा रहे थे गैस स्टेशन पे। तो सद्गुरु आए, उन्होंने उसे देखा और कुछ सेकंड्स में ही वह मोटरसाइकिल चालू हो गई। हम 10 मिनट से कोशिश कर रहे थे पर मानो चमत्कार हो गया। मुझे उस समय समझ नहीं आया। मैंने उनसे भी पूछा कि ऐसे कैसे हुआ, तो उन्होंने मुझे समझाया कि यह केवल सद्गुरु की ग्रेस है जिसके कारण वो मोटरसाइकिल चालू हुई। देखिए, आप देख रहे हैं मैं किस तरह के राइडर्स के साथ इस सफ़र पे था। He's like a mother, always look after us, and he always asks us whether you guys had food. ये बिल्कुल हमारे लिए माता की तरह थे और हमेशा हमसे पूछते थे कि हमने खाना खाया कि नहीं। Like a dad. और इन्होंने हमें कई तरह के टिप्स दिए किस तरह से मोटरसाइकिल चलानी चाहिए, कि ऐसा ना करें वैसा करें, कि क्या ऑयल चेंज करने की ज़रूरत है या टायर को चेंज करने की ज़रूरत है। वे हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए चिंतित थे और उन्होंने हमारा ध्यान रखा। और जब भी हम कैंप साइट में जाते थे, लोग कई चीज़ें इधर उधर फेंकते हैं, तो हर जगह हम कुछ समय उसकी सफाई के लिए लगाते थे। तो क्योंकि वे प्रकृति के लिए और चिंतित हैं, तो उन्होंने हमें कई बार याद दिलाया कि हमें मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए। और मैं सभी वॉलंटियर्स को अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया। और मैं उन सभी वॉलंटियर्स का आभार व्यक्त करता हूँ जो हमारे साथ थे। वे केवल एक बड़े परिवार की तरह थे जो एक दूसरे का ध्यान रखते थे। अगर खाना नहीं है तो वे जल्दी से बनाकर उन्हें खाना खिलाते थे। मैंने मोटरसाइकिल चलाई, वह 600 पाउंड्स की थी और सद्गुरु जो चला रहे थे वह 900 पाउंड की थी। तो इस उम्र में मुझे नहीं मालूम जब मैं उनकी उम्र का हूँगा मैं उसे चला भी पाऊँगा। इतने सारे काम के साथ कई और जगहों में जाना, कई प्रश्नों का उत्तर देना, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जो भारत में और यूएस में एक सपोर्ट सिस्टम था जिन्होंने हमारा पूरा ध्यान रखा। मैं सद्गुरु को आभार व्यक्त करता हूँ मुझे इस सौभाग्य को देने के लिए। Namaskaram, everyone. आप सभी को नमस्कार। Has meant everything to me. यह सफ़र मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें मायने रखता था। I was like, I just couldn't believe how lucky. मैं खुद को बहुत लकी मानता हूँ कि मैं इसका एक हिस्सा था। सद्गुरु के साथ मोटरसाइकिल चलाना यह मेरे लिए एक सपना था और इस पूरी टीम के साथ मैंने और इनके वीडियोस, उनकी शेयरिंग सुनना। So you guys had
just as much experience. आप सभी का उतना ही अनुभव था जितना मुझे हुआ है, You know, me growing up in America, और मैं यहाँ you know, I've अमेरिका had में this बड़ा limited, हुआ हूँ, experience of the तो nation and its मैंने people. इस पूरे देश को बहुत ही सीमित रूप से देखा है। तो अब उसे इतने करीबी से देखना, यह मेरे लिए एक सपना था जो शायद मुझे पता भी नहीं था कि यह मेरा था। और जो इन लोगों के साथ हुआ है, जिस तरह का जीवन मेरा अभी है, It's heartbreaking. यह बहुत ही भावपूर्ण है। So, और यह देखना कि अभी वह कैसे रह रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम सभी कुछ समय लें, इन लोगों को देखें और किस तरह से इन्होंने हमारे जीवन पर एक असर डाला है। Not even here, but their kind of impact has been all over the world. केवल यहाँ ही नहीं पर पूरे विश्व में एक तरह से इनका असर रहा है। Haven't seen even the West Coast. मैंने वेस्ट कोस्ट भी नहीं देखा है, Go on this trip तो and, see इस सफ़र पर जाना और इस पूरे देश को देखना, I couldn't even say anything more about it. मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कह सकता। यह बहुत ही शानदार और बहुत सुंदर रहा है और मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जो इसका हिस्सा थे। Namaskaram. I'm going to be emotional. नमस्कारम, It was an मैं amazing adventure. भावपूर्ण हो जाऊंगी। यह बहुत ही शानदार सफ़र था। सद्गुरु ने हमारा कई तरह से हमारा ध्यान रखा। उन्होंने हमें कई कहानियाँ सुनाई हैं एक छोटे से लड़के होने की, पर हमारा यह सौभाग्य था कि हम उस छोटे लड़के को देख पाएँ। हमने एक माता, पिता और एक मिस्टिक को देखा है। जिस तरह से वे हर जगह जहाँ हम गए, हर एक व्यक्ति जिनसे हम मिले, और कई जगहों में हम जहाँ जाते थे वह केवल चलते थे, और कई जगह जैसी ग्रैंड कैरियन जहाँ वह बिल्कुल भाव विभोर हो गए और कई तरह की प्रक्रियाएं की। उन्होंने कहा कि ग्रैंड कैनियन एक तरह से सभी लोगों का स्वागत कर रहा है, और यह अनुभव उनके साथ करना बहुत ही सुंदर था। जिस तरह से वह दुनिया को देखते हैं, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। मैं खुश हूँ कि हम वह वीडियो जो आप देख पाए वह शेयर कर पाए, और इस अनुभव को शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। मैं सद्गुरु को अपना आभार व्यक्त करती हूँ। नमस्कारम। यह मेरे लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं इस टीम का हिस्सा थी, और यह देखना, अमेरिका को उनकी आंखों से देखना, यह मेरे लिए इस तरह से संभव नहीं होता। हमने 2.5 हफ्ते के लिए प्लान बनाया था और यह 36 दिन के लिए हुआ, पर मानो लगा कि बस हम कल ही मानो आश्रम से निकले थे और आज हम वापस भी आ गए। तो यह कितना ही सुंदर, इतना ही तीव्र रहा है। हम पूरे समय अलर्ट थे और यह पूरी ट्रिप अनप्लान्ड थी। हर रोज़ हम यह डिसाइड करते थे कि अगले दिन हम कहाँ होंगे। कई बार सुबह सुबह या देर रात को हमें
पता चलता था कि हम क्या करने वाले हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। आमतौर पर कम से कम महीने या कुछ साल लगते हैं इस तरह के सफ़र की तैयारी करने के लिए। इन 36 दिनों में जो कुछ हुआ है, इसकी तैयारी करने के लिए लगभग 1 साल लग जाता है। पर सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि हम सभी गए, हम वापस आए, पर इसमें से कोई भी एक एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी को कहीं चोट नहीं लगी, हम में से कोई भी बीमार नहीं पड़ा। पूरे समय सद्गुरु ने एक तरह से अपने साथ अपनी सुरक्षा में हमें रखा। कितने दिनों के लिए, 6 से 8 घंटों के लिए मोटरसाइकिल चलाना, लगभग 10 घंटों तक, और फिर भी सारे एक्टिविटी उसी तरह से होना है। यह सोचना कि सबसे बेहतरीन चीज़ होनी चाहिए, कई तरह से फिज़िकली, मेंटली, यह काफ़ी स्ट्रेचिंग था हर तरह से। पर हर बार जो भी ज़रूरी सपोर्ट, जो भी ऊर्जाएं, जो भी जिसकी भी ज़रूरत है, वह था। यह सफ़र मेरी कई सारी सीमाएं तोड़ी हैं और कई चीज़ें मैंने अपने बारे में देखी हैं, और मैं सभी के लिए सद्गुरु और जो इस टीम का हिस्सा थे यहाँ और बैकग्राउंड में जो भी लोग थे, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। कई चीज़ें वे एक साथ हैंडल कर रहे थे। हम सभी को अलग अलग चीज़ें करनी थी, न केवल एक चीज़ बट कई सारी चीज़ें। सद्गुरु कह रहे हैं कि यह एक दर्शन है, कार्यक्रम नहीं है। यह बहुत ही सुंदर सफ़र रहा है और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आपको इस तरह से ज़्यादा निर्देश नहीं सुनने चाहिए। यह कैमरास लगभग 18 से 20 घंटे तक ऑन थे। मैं आशा करता हूँ हमने सारी चीज़ें कैप्चर करी हैं, पर जो कुछ भी हमने देखा उन सब कुछ को एक पिक्चर में डालना में यहाँ यूएस और भारत की टीम्स दोनों मिलकर उसे सबसे बेहतरीन तरीके से निकालेंगे और इन सारी चीज़ों को आप के लिए उपलब्ध कराने में 1 से 2 महीने का समय लगेगा। तो पिछले 36 दिनों में लगभग 18 घंटों तक कैमरास ऑन रहे हैं। तो आप इसका इंतज़ार करें, हम देखते हैं हम इसे कितने जल्दी कर सके। इसे करने में कुछ समय लगेगा। ऐसा सफ़र क्यों? आप में से ज़्यादातर लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि 18 साल पहले इस जगह पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ था और इस सेंटर के लिए लैंड ढूंढने में कई सारी रिकमेंडेशंस आई थी। तो तब मैंने कहा था कि हम यहाँ आश्रम स्थापित करेंगे। वे लोग जो यहाँ महिमा कॉन्सेक्रेशन के समय थे, उन्होंने कई चीज़ें देखी हैं कि इस
जगह में कितना दर्द था, और अब इस नेटिव अमेरिकन कल्चर को देखना 36 दिनों में इसे कर पाना संभव नहीं, क्योंकि एक समय लगभग 500 देश थे यहाँ पे जिन्हें केवल एक लेबल में डाला गया है, पर 500 इंडिविजुअल नेशंस थे जिनकी अपनी भाषा, अपनी आध्यात्मिक प्रक्रिया, अपने कल्चर। ऐसा करने के लिए बहुत समय लगेगा, लगभग एक पूरा जीवन लग सकता है अगर हम उनके साथ यह करना चाहते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि हम उनके साथ यह जस्टिस कर सकते हैं। लगभग 40,000 सालों से वे यहाँ हैं, पर कम से कम अगर हम उन्हें इस दुनिया में लेकर आएं ताकि लोग उन्हें जान पाएं, कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं। हो सकता है अमेरिका में उनके बारे में कुछ नॉलेज है, पर बाकी पूरी दुनिया को इनके बारे में पता नहीं है। नेटिव अमेरिकन लोग, उनकी समझ में यह है कि कुछ ऐसे युवा जो घोड़े पर चलते हैं और लोगों को शूट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वे ऐसे हैं। उनके कई तरह के अच्छी तरह से एस्टैब्लिश सेटलमेंट्स थी। 40,000 लोग एक शहर में रह रहे थे। उसी समय लंदन में केवल 15,000 लोग थे। यहाँ एक नेटिव अमेरिकन गांव लगभग 40,000 लोग थे। 40,000 लोग पूरी सिस्टम के बिना नहीं रह सकते। इतने सारे लोग एक साथ रहना ज़रूरी ही वहाँ पे एक सिस्टम रहा होगा। ऐसे कई तरह के पहलू हैं जो हम सबको एक साथ ला पाए, पर उनमें से कई लोग यह सोचेंगे कि हमने यह उचित नहीं किया है, हम ऐसा कर भी नहीं पाएंगे। पर लोगों को यह पता हो कि ऐसे भी लोग थे जो इस दुनिया में थे, जिन्होंने इस पृथ्वी पर बहुत समय बिताया है, और अब उनके बारे में हमें पता ही नहीं। आप भूतकाल को ठीक नहीं कर सकते, पर आप भविष्य के लिए एक रास्ता ज़रूर बना सकते हैं। जो कल हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, पर जो हम कल कर रहे हैं वहाँ कुछ किया जा सकता है। किसी तरह से हो सकता है हम इसमें सफल होंगे, और पूरी दुनिया में अब कुछ तरह से यह बाहर आया है। इंडिया में काफ़ी बज़ है, सोशल मीडिया पर भी लोगों को इनके बारे में पता चल रहा है, और हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि सारी दुनिया आजकल इंटरनेट के ज़रिए काम करती है। तो अगले कुछ सालों में हम चाहेंगे कि सब लोगों को इनके बारे में पता चले। केवल गिल्ट या रिग्रेट में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तरीका बस यह है कि हम अपने जीवन में कुछ चीज़ें ठीक करें। तो आप जो भी समय सोशल मीडिया पर, मैं नहीं जानता आप कितने घंटे बिताते हैं, 6 घंटे, जो भी आपका समय है, कम से कम उसका 5% आप इन लोगों के बारे में जानने में लगाएं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है, आप उनके बारे में देखें, अपने दोस्तों से, अपने परिवार के सदस्यों के कि ऐसे भी लोग हैं जो भयंकर चीज़ें हुई थी उन्हें नहीं देखते हुए, पर उनके बारे में जो चीज़ें शानदार थीं, बेहतरीन थी, उनके बारे में आप पढ़ें और बताएं, क्योंकि आज के जीवन में यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वे
जीवन के ऊपर नहीं रहते थे, ये जीवन का एक हिस्सा वैसे रहते थे। इस पृथ्वी का हिस्सा जिस तरह से एक पेड़ रहता है, उसी तरह से उन्होंने अपना जीवन जिया है। तो यह इस पीढ़ी और अगली पीढ़ी के लिए यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रकृति की यह समस्या केवल स्कूल की किताबों में ही है, कहीं यूनाइटेड नेशंस की किसी पीएचडी किसी थीसिस में है, पर यह हमारे दिल में आने चाहिए। इसके लिए कोई भी अच्छी प्रेरणा नहीं है कि इन सभी नेटिव अमेरिकन लोगों के दिल में प्रकृति थी, और यह इस पीढ़ी के लिए होना चाहिए। अगर कुछ हमारी और हमारे बच्चों की खुशहाली के होना है तो यह सबसे ज़रूरी है। तो यह बहुत ही शानदार समय रहा है, यह 36 दिन। पिछले 2-3 दिनों में हमारी टीम्स थोड़ी लंबे चेहरे लेकर घूम रही हैं, क्योंकि उन्हें लगा है कि यह बहुत छोटा था और बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। कोई भी अच्छी चीज़ को आपको ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए जब तक वह अच्छी है। जिस तरह से इन्होंने बताया, बिना किसी एक भी समस्या के हम कुछ कई जगहों में जहां महामारी पूरी तरह से चल रही थी, जहां सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड लोग थे और जहां सबसे ज़्यादा मृत्यु हो रही थी, हम उन सभी राज्यों से गए, पर हम में से कोई भी एक व्यक्ति भी इन्फेक्ट नहीं हुआ और किसी भी तरह से बीमार नहीं पड़ा। क्या यह ठीक है समय के हिसाब से? आप सब ठीक है, क्योंकि आपको कुछ भी करने को नहीं है। जी नहीं, मैं यह अच्छे तरीके से कह रहा हूँ। क्या ऑनलाइन तरह से यह लंबा होना ठीक है? तो नमस्कारम आप लोग जहाँ भी हैं, हम केवल कुछ मिनट्स लेंगे। मैं एक सीनियर डॉक्टर से बात कर रहा था जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, जो एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट भी हैं। तो जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मुझे आयुर्वेद के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है। मेरे को बस इतना पता है, मुझे बस इतना पता है कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, बस इतना ही मुझे पता है। वे प्राण और कई चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा ओजस के बारे में। मैंने अपने अनुभव में यह देखा है कि अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, अगर मैं उसे ओजस में लपेट लूँ तो वह ठीक हो जाता है, क्योंकि यह एक खोल नहीं है जो आप अपने आसपास बनाते हैं। वह एक ऐसा खोल है जो आप कहीं सैकड़ों लोगों के आसपास भी बना सकते हैं, और अपने हर एक सेल के आसपास आप एक ओजस की खोल बना सकते हैं। आप कोशिश कर रहे हैं, जो आप शक्ति चलन क्रिया करते हैं, क्या आप हफ्ते में एक बार करते हैं? तो आप में से कुछ लोग रोज़ कोशिश कर रहे हैं, कुछ कभी कभार। यह एक साधारण सा तरीका है। ऐसे कई और तरीके हैं इसे बस यूं ही करने के, क्योंकि यह है। देखिए, आप डेबिट कार्ड पे हैं, तो अगर आपके पास $1000 हैं तो आप केवल $1000 ही निकाल सकते हैं। पर अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है तो आप जितना भी निकालना चाहें निकाल सकते हैं, क्योंकि बैंक का पैसा है यह।
मैं पैसों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, पर यहाँ इस ब्रह्मांड में उन लोग के लिए जो अपने दरवाजे खोलने को तैयार हैं, उनके लिए अनगिनत तरह की ऊर्जाएं हैं। ओ सद्गुरु, मैं तो बिल्कुल ओपन हूँ, बिल्कुल खुला हूँ, तो मुझे अपने अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं। यह प्रैक्टिसेस ही हैं जिनसे यह दरवाजे खुल रहे हैं। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और कोई आपको बेवकूफ़ बोले तो यह बंद हो जाएंगे, है कि नहीं? एक छोटी सी चीज़, आप चल रहे थे और आप गिर गए और थोड़ा सा खून निकला केवल आपकी टो में, पैर की उंगली में, पर आपके दरवाजे बंद हो जाएंगे। किसी ने आपकी तरफ एक खिलौने की गन दिखाई तो भी दरवाजे बंद हो जाएंगे। इस तरह से आपके परिवार में लोग हैं, ऑफिस में लोग हैं, सड़क पर लोग हैं, वे कुछ करेंगे जिससे आपका दरवाज़ा बंद हो जाए। ऐसी उनकी इच्छा नहीं, बस यूं ही वे ऐसे ही हैं, दरवाज़ा बंद करने वाले। और आपको बस एक एक्सक्यूज़ चाहिए कि ऐसा हुआ, किसी ने ऐसा किया, ये हुआ, वो हुआ, इसलिए मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ। तो आप दरवाज़ा बंद कर लीजिए, वेंटिलेटर भी बंद कर लीजिए, खिड़की भी बंद कीजिए, तो इस तरह से आप भी ख़त्म हो जाएंगे। सद्गुरु, हम यहाँ आपकी ब्लेसिंग्स के लिए आए थे, पर अगर आप सब कुछ बंद कर दें तो आप ख़त्म हो जाएंगे। पर अगर आप ये सारे दरवाजे खोल देते हैं तो आप इस तरह से जीवित होंगे कि आपको पता भी नहीं कि आपकी जीवंतता इस तरह की है जो आपके आसपास सब कुछ रोशन कर सकती है। अन्यथा अगर आप केवल एक छोटी सी खिड़की खोल के रखते हैं तो भी आप सांस ले पाएंगे। यह आईसीयू की तरह है। कई घर इस तरह के ही हैं। मैं इंटेंसिव केयर यूनिट की बात कर रहा हूँ, जहाँ कई तरह के सपोर्ट हैं, फिज़िकल, इमोशनल, इस तरह की ट्यूब्स लगी हुई हैं। हर रोज़ सुबह उठ के मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो। हर रोज़ सुबह इस तरह का एक कन्फर्मेशन। ऐसा क्यों है? केवल उनका चेहरा देखकर आपको पता चल जाना चाहिए कि वह आपसे प्यार करते हैं कि नहीं। अगर केवल आप उनका चेहरा देखते हैं, उससे ही आपको पता लग जाना चाहिए, है कि नहीं? नहीं, यह एक आईसीयू की तरह है। आप केवल एक ट्यूब निकालें और सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो इन्हें आपको बदलने की आवश्यकता है। इनको ओजस के खोल में बदलने की आवश्यकता है। तो भी अगर आप एक छोटी सी जगह में रहते हैं, तब भी आप पूरे ब्रह्मांड की तरह जिएंगे। ज़्यादातर योगी एक गुफा में रहते थे, बट उनका अनुभव ब्रह्मांड की तरह है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने ऊर्जाओं से अपनी सीमाएं तोड़ी थी। कई तरह की एस्पिरेशंस लोगों में हैं, पर उतना कमिटमेंट नहीं है। यह मेरी इच्छा और आशीर्वाद है कि आप सभी जो यहाँ हैं, यहाँ कहीं भी हैं, किसी का ज़रूरी कॉल आ रहा है। क्यों सद्गुरु अभी भी बोल रहे हैं? क्यों अभी तक वे बोल रहे हैं? उन्हें 8:30 बजे बंद कर देना चाहिए था। तो यह मेरी इच्छा और आशीर्वाद है कि आप इसे इस जीवन में अपने लिए पैदा करें। अगर आप ऐसा नहीं करते जब मैं यहाँ हूँ, तो बाद में आपके लिए एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया होगी। नमस्कारम। Yuga
योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। Gurdjieff. He was a wacky master. गुरजीफ जो एक अलग ही तरह के मास्टर थे, या स्पेंसकी जो एक गणित के जो उनके डिसाइपल बने। During the wartime, it was so risky for anybody to travel into इस लड़ाई के समय, उस समय यहाँ जाना बहुत मुश्किल था, तो गुरजीफ ने स्पेंसकी को एक टेलीग्राम भेजा कि आप अभी आएं। he thought वे सोचे कि उन्हें कुछ नई चीज़ पता चलेगी, वे उन्हें कुछ एनलाइटनमेंट देंगे। पर जैसे ही वे वहाँ आए, oh you come, you may leave. अच्छा तुम आए हो, आप यहाँ से जा सकते हैं। Ouspensky left. और जैसे ही वे गए, Gurdjieff wept. Gurdjieff actually जैसे ही वे गए, गुरजीफ बहुत रोए।